Hello, good morning students and welcome back on my YouTube channel Math Mentor. So today I am back with the new topic permutation and combination. So this permutation and combination is one of the simplest topic of algebra. So this is absolutely depends on the counting principle, fundamental principle of counting. So by the name of the topic permutation and combination, there are two different words, permutation and other is what combination, which has different meaning. दोनों की भी अलग अलग मीनिंग है. What is the definition of permutation and what is the definition of combination? These two topics are completely depends on the logic. ये पूरा टॉपिक लॉजिक पे ही डिपेंड है और टोटल जो नया टॉपिक है प्रोबेबिलिटी विच इज़ एब्सोल्युटली डिपेंड्स ऑन दिस परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन. जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, वो पूरा का पूरा टॉपिक इसी कंसेप्ट पे है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन. एंड फॉर MST-CET, फॉर द अपकमिंग एग्जाम MST-CET, दिस एग्जाम कैरीज मैक्सिमम 1 क्वेश्चन. सो 1 क्वेश्चन मीन्स 2 मार्क्स के लिए टॉपिक है. सो विल सी द अप टू 50 to 60 MCQs हम लेंगे इस टॉपिक पे, परमुटेशन कॉम्बिनेशन पे. सो ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग द एक्चुअल कंसेप्ट, एक्चुअल डेफिनेशन, द फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन. सो फर्स्ट वी हैव टू डिफाइन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फैक्टोरियल नोटेशन. सो सी द कंसेप्ट फैक्टोरियल. फैक्टोरियल नोटेशन. What is the meaning of factorial notation? If n is natural number means counting number, then the product of first n natural number 1, 2, 3, 4, 5, 6, so this is called as n factorial. So this mark is m factorial or factorial of n. So this is the both symbol for factorial, but generally this is for very renowned symbol for factorial. So n factorial or factorial of n. So if n is natural number, then product of first n natural number, that is we denoted by n factorial. So factorial कैसे अप्लाई करेंगे देखो, अगर ये 3 factorial है, so it is a 1 into 2 into 3, 1 into 2 into 3. If it is a 4 factorial, so 1 into 2 into 3 into 4. इसको हम रिवाइज भी कर सकते हैं, 4 into 3 into 2 into 1. इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4 into 3 into 2 factorial, because 2 factorial means what, 2 into 1. 4 into 3 factorial, because 3 into 2 into 1 is 3 factorial. 4 into 3 factorial means 4 factorial. So this is here. What is the meaning of 7 factorial? 7 factorial means 7 into 6 factorial, or 7 into 6 into 5 factorial, or 7 into 6 into 5 into 4 factorial. So this is 7 into 6 into 5 into 4 into 3 factorial. This is C is equal to 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 factorial. And finally 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 factorial or 1. So this is the meaning of 7 factorial. 7 factorial means what? The product of first 7 natural number, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, or 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, so it means what is the meaning of n factorial? N factorial is n into n minus 1 factorial, n minus 1 factorial, or n into n minus 1 into n minus 2 factorial. 7 factorial means 7 into 7 minus 1 factorial, 7 into 7 minus 1 into 7 minus 2 factorial, 7 into 7 minus 1, 7 minus 2, 7 minus 3 factorial. So what is the meaning of n factorial? N into n minus 1 factorial, or n into n minus 1 into n minus 2 into n minus 3 factorial, or n into n minus 1 into n minus 2 into n minus 3 into n minus 4 factorial, so on. So this is the meaning of n factorial.
So factorial means what? It is the product of first n natural number, that is we denoted by n factorial. So this is a symbol of factorial. This or this both are same symbol. This is we read as n factorial, this we read as factorial of n. Okay, so this is the first basic concept of this topic, permutation and combination. Okay, so here so this is 0 factorial is equal to 1. 0 फैक्टोरियल कितना होता है? 1. सो 0 फैक्टोरियल क्या होता है? 0 का तो कोई प्रोडक्ट नहीं होता, बिकॉज एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय 0 इज 0. बट हाउ इट इज पॉसिबल 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1? सो वी कैन प्रूव दिस इज ये हम प्रूव भी कर सकते बाय यूजिंग दिस कंसेप्ट. ये जो कंसेप्ट है n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल. सो लुक एट दिस, वी नो दैट, हम इसको प्रूव भी करेंगे. वी नो दैट n factorial is equal to n into n minus 1 factorial. So put here n is equal to 1. आप यहाँ पर क्या पुट करेंगे? n is equal to 1. So it is 1 factorial is equal to 1 into 1 minus 1 factorial. So 1 factorial is 1. 1 into 0 factorial. So it is a 0 factorial is equal to 1. Hence proved. ओके, सो रिमेंबर वन थिंग, 0 फैक्टोरियल कितना होता है? 1 होता है. सो n फैक्टोरियल इज नथिंग बट n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फैक्टोरियल. ओके, सो ये टॉपिक में परमुटेशन कॉम्बिनेशन में फैक्टोरियल नोटेशन, फैक्टोरियल सिंबल इज मोर इम्पॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है. सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ फैक्टोरियल नोटेशन. इसके बाद क्या है? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग? सो अगर इफ अ थिंग ए हैपन्स m डिफरेंट वेज, अगर ए थिंग है, कौन सी भी थिंग है, वो हैपन्स m डिफरेंट वेज, एंड b इज अ थिंग विच हैपन्स n डिफरेंट वेज. सो दिस इज द वी सी द कंसेप्ट, दैट इज व्हाट फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग. सो काउंटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर. पूरा टॉपिक इस पे डिपेंड है. टोटल टॉपिक में न्यूमेरिकल एग्जाम्पल्स है, कुछ वर्ड एग्जाम्पल्स हैं, और जो वर्ड एग्जाम्पल है वो सिर्फ लॉजिक पे डिपेंड है. सो आपको सब चीज़ अंडरस्टैंड होना जरूरी है. वो एग्जाम्पल रीड करना आना चाहिए, उसमें क्या व्हाट ही हैज़ गिवन, टोटल गिवन पार्ट क्या है वो अंडरस्टैंड होना चाहिए. उसके बाद हम हर एक MCQ विद इन 30 सेकंड हम सॉल्व करेंगे. 20 to 30 सेकंड में हर एग्जाम्पल सॉल्व हो सकता है. कुछ अगर कैलकुलेशन है तो उसको 1 मिनट भी लग सकता है. बट ये टॉपिक बहुत ही सिंपल है. सिर्फ आपको इतने MCQs करना है जो मैं आपको इस वीडियो लेक्चर में पढ़ाऊंगा. ये टोटल सीरीज ऑफ दिस टॉपिक, जो टॉपिक है परमुटेशन कॉम्बिनेशन में, उसमें जो भी 5, 6, 7 वीडियोज़ बनेंगे वो पूरे के पूरे आपको अंडरस्टैंड करना है, और हर एग्जाम्पल आप चुटकी में उसको सॉल्व कर सकते हैं. ओके, सो दिस टॉपिक परमुटेशन and combination is very simplest topic of 11th standard, but which belongs to what? MST CET. So MST CET में जितने भी टॉपिक है, पेपर सेकंड के 5 टॉपिक है. कॉम्प्लेक्स नंबर है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, फंक्शन है, लिमिट्स और कंटिन्यूटी. 5 टॉपिक है तो 5 क्वेश्चन आएंगे. सो ईच टॉपिक कैरीज मैक्सिमम 1 क्वेश्चन. ओके, कुछ ऐसा भी हो सकता है, प्रोबेबिलिटी और परमुटेशन कॉम्बिनेशन 2 टॉपिक रिलेटेड है. प्रोबेबिलिटी पेपर फर्स्ट में है, ये पेपर सेकंड में है, कंबाइंड क्वेश्चंस होते हैं. तो ये 2 टॉपिक पे 2 क्वेश्चंस मल्टीपल कंसेप्ट हो सकते हैं. मल्टीपल कंसेप्ट में दिस इज बिलोंग्स टू परमुटेशन कॉम्बिनेशन आल्सो बिलोंग्स टू व्हाट? प्रोबेबिलिटी. ओके, सो ऐसा ही पॉसिबिलिटी है कि एक ही क्वेश्चन में 2 टॉपिक भी कवर हो सकते हैं. जस्ट लाइक व्हाट? परमुटेशन कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आल्सो. सो ये भी 3 टॉपिक कनेक्टेड है. इस पर भी कनेक्टेड तीनों टॉपिक पे भी क्वेश्चन बन सकता है. ओके, बट परमुटेशन कॉम्बिनेशन बहुत सिंपल टॉपिक है. सिर्फ जितने वीडियोस में बनाऊंगा, जितने मैं MCQs लूँगा, उसको केयरफुली सॉल्व करो, हर चीज़ अंडरस्टैंड हो जाएंगी. ओके, सो नाउ फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ काउंटिंग. ये काउंटिंग जो वर्ड है बहुत ही इंपॉर्टेंट, इस पे तो पूरा टॉपिक डिपेंड है, काउंटिंग. सो इफ थिंग ए happens m different ways,
m different ways. कौन सी भी ये थिंग है, कौन सी भी ये थिंग हैपन्स m डिफरेंट वेज, m डिफरेंट वेज में वो हैपन है. एंड थिंग बी हैपन्स in n different ways, then thing A and B, so A B independent है, so B is independent from A is independent from B, अलग अलग है, independent है. So then A and B happens in m multiplied by n different ways. So सबसे important in permutation combination, and means what? Multiplied. And means what? Multiplied. अगर A and B both happens in m and n, m multiplied by n ways, and अगर A और B happens in m plus n different ways, it means what? In permutation combination, and means multiplied and or means what? Add करना है. अगर दो A और B, either A or B, then we have to add m plus n ways, m ways and n ways, that becomes what? M plus n ways if happens A or B. So in permutation combination, A means multiplied and or means what? Addition, sum. ऐड करना है दोनों को, m ways and n ways, so it becomes what? M plus n ways. So this fundamental concept is called as what? Principle of counting. Fundamental concept of principle of counting. Principle of counting. Principle of counting. So remember one thing, in permutation and combination, and implies multiplied and or implies what? Addition. Okay, so this is the principle which is called as what? Fundamental principle of counting. Okay, so before actual starting the formal definition of permutation and combination, what is the meaning of permutation, what is the meaning of combination, इसके पहले ये जरूरी है कि फैक्टोरियल क्या होता है. फैक्टोरियल is it is meaning what? That the product of first n natural number, that is we denoted by n factorial. Okay, so if A things happen in m different ways and B thing happens in n different ways, then A and B happen simultaneously in m multiplied by n ways. और अगर इसमें और है तो it is m plus n ways, n plus n different ways. So and implies multiplied or implies sum, addition and product. Okay, so this is the called the principle of counting. Okay, इसके बाद हम देखेंगे what is the meaning of permutation and the combination. permutation meaning का word क्या है, इस word का meaning क्या है, और combination इस word का meaning क्या है. Okay, we will see right now. Now we'll see the actual concept of permutation. So उसमें दो पार्ट है, एक permutation है, दूसरा combination है. पहले हम permutation देखेंगे. What is the meaning of permutation? Permute means to arrange. So simple meaning of permutation means arrangement. Permutation. This means what? Arrangement. टू परम्यूट मीन्स टू अरेंज. टू अरेंज मीन्स हमें अरेंजमेंट करें. सो अरेंजमेंट कहाँ कहाँ होती है? सो अरेंजमेंट ऑफ सिटिंग, अरेंजमेंट ऑफ एग्जामिनेशन, सिटिंग अरेंजमेंट इन अ ट्रेन, सो अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स इन द वर्ड, सो अरेंजमेंट ऑफ पीपल्स फॉर फोटोग्राफ, अरेंजमेंट ऑफ पीपल्स फॉर द मीटिंग, सो अरेंजमेंट ऑफ पीपल्स फॉर द प्लेइंग गेम. सो दिस इज अरेंजमेंट. सो यहाँ पर अरेंजमेंट होती है. सो वहाँ पर क्या है? परमुटेशन है. सो टू अरेंज द ऑब्जेक्ट्स, दैट इज कॉल्ड एज द परमुटेशन. So here we have to arrange R out of n object.
वी हैव टू अरेंज आर आउट ऑफ n ऑब्जेक्ट्स. सो ये एक रो है, यहाँ पर n ऑब्जेक्ट है 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन n. सो यहाँ पर अरेंजमेंट करनी है, सिटिंग अरेंजमेंट करनी है. सो पहला प्लेस फिल करेंगे आउट ऑफ n मीन्स n, सेकंड इज n minus 1 r आउट ऑफ n ना. सो r, so this r minus 1, first position r, second r minus 1, third r minus 2, fourth place for the r minus 3, remaining fifth place for the remaining r minus 4, sixth place for the r minus 5 and so on. So this is the nth place. So nth place for what? n minus r minus 1. So first place for the r, second place r minus 1, third place remaining r minus 2. So this is NPR. We have to arrange r objects taken from n. So P for permutation NPR. इसको ऐसे भी लिखते हैं NPR. But generally this is the regular notation for permutation. So which formula is n factorial divided by n minus r factorial. N factorial divided by n minus r factorial. So this is a formula for what? Permutation. So permutation is nothing but its arrangement. So अगर हमें 10 लेटर्स दिए हैं, 10 लेटर्स दिए अल्फ़ाबेट्स, वी हैव टू अरेंज अ वर्ड. उस 10 लेटर से हमें कुछ मीनिंगफुल वर्ड्स बनाने के हैं. सो कितने वर्ड बन सकते हैं? सो दैट इज़ कॉल्ड एज द अरेंजमेंट. सो ऐसे अरेंजमेंट है. कोई मीटिंग है, सर्कुलर मीटिंग है, सर्कुलर टेबल होता है, वहाँ पर मीटिंग अरेंजमेंट करना है. एक प्लेस तो प्रेसिडेंट का रहेगा, दूसरे साइड में नॉन वाइस प्रेसिडेंट रहेंगे. रिमेनिंग चेयर्स फॉर द मेंबर्स, फर्स्ट चेयर फॉर द चेयरमैन, सेकंड साइड की चेयर फॉर द वाइस प्रेसिडेंट एंड रिमेनिंग चेयर्स फॉर द मेंबर. सो दिस इज द कैटेगरीज वेयर द वी हैव टू अरेंज द पीपल्स फॉर द मीटिंग. कुछ फोटोग्राफ्स बनना है, फैमिली फोटोग्राफ बनाना है, तो पीछे चेयर में जो भी सीनियर मोस्ट है, दादा दादी नाना नानी, वो पीछे बैठेंगे. उनके साइड में मम्मी पापा काका चाचा चाची खड़े रहेंगे. फिर फैमिली के कुछ बड़े बच्चे, उसके बाद छोटे बच्चे, ऐसे कुछ अरेंजमेंट. सो ये भी जो भी सीक्वेंस है, उसी अरेंजमेंट को, उसी फोटोग्राफ के अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं? परमुटेशन कहते हैं. लेटर्स के अरेंजमेंट, नंबर के अरेंजमेंट. अगर कोई बुक का रैक है, वहाँ पर बुक्स के अरेंजमेंट करना है. सो दैट इज ऑल्सो अरेंजमेंट ऑफ बुक्स इन द रैक. So such type of examples are completely belongs to what? Permutation. So remember, permutation is nothing but the arrangement of objects are taken from n. So we denoted by n factorial divided by n minus r factorial. Okay. So this is a simple meaning of permutation. So here अब इसमें कुछ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं. कुछ सर्कुलर परमुटेशन है, कुछ ऐसे हमें अरेंजमेंट ऑफ रिपीटेड ऑब्जेक्ट्स है. फॉर एग्जाम्पल रिप्रेजेंटेशन ये वर्ड है, रिप्रेजेंटेशन. इस वर्ड की हमें अरेंजमेंट करनी है. वी हैव टू अरेंज दिस वर्ड. हाउ मच डिफरेंट वेज वी कैन अरेंज दिस. सो देखो कितने लेटर्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. It's a 14 factorial. So number of letters are 14. नंबर ऑफ लेटर्स आर 14. इसमें से कुछ रिपीटेड है. आर रिपीटेड, आर आर 2 टाइम्स है. आर रिपीटेड 2 टाइम्स. ई ई ई रिपीटेड 3 टाइम्स. ई भी खत्म हुआ. देखो यहाँ पर एन रिपीटेड 2 टाइम्स. सो एन इज इक्वल टू 2 टाइम्स. टी रिपीटेड 2 टाइम्स. T repeated 2 times. सो बाकी ए आई ओ तो ये तो सिंगल है, P भी सिंगल है, बस सब सिंगल है. S भी सिंगल है, यहाँ पर P सिंगल है, S सिंगल है, ये भी सिंगल है, I सिंगल है, O भी सिंगल है. सो दिस इज द टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट 14 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल. सो दिस इज द टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट ऑफ दिस वर्ड रिप्रेजेंटेशन. सो ये कैसे हुआ? जो भी रिपीटेड ऑब्जेक्ट्स है, यहाँ पर रिपीटेड लेटर्स कौन से, वो भी जो भी है वहाँ पर 2 है, R 2 टाइम्स, E 3 टाइम्स, N 2 टाइम्स, T 2 टाइम्स. सो दिस इज द पॉसिबल वे ऑफ
अरेंजमेंट ऑफ द वर्ड रिप्रेजेंटेशन. ओके, ये है फर्स्ट एग्जाम्पल. इस सेकंड एग्जाम्पल, प्रताप इस वर्ड की अरेंजमेंट करना है, PRATAP. टोटल लेटर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6. वी कैन अरेंज इन 6 फैक्टर बिकॉज टोटल नंबर ऑफ लेटर्स इन द वर्ड प्रताप इज व्हाट? 6. इन दैट A repeated twice, P repeated twice. So P repeated twice, A repeated twice. So this is a 2 factorial into 2 factorial. So this is the total number of ways we can arrange the word Pratap. 6 factorial हम कैसे करेंगे? 6 into 5 into 4 into 3 into 2 factorial divided by 2 factorial means 1 into 2 और ये 2 factorial. This 2 factorial cancel. 2 3s are 6, 3 3s are 9, 5 4s are 20, 20 into 9. So total number of ways कितने हैं? 180. So इस वर्ड की 180 वेज इसकी अरेंजमेंट हो सकती है. सो वी कैन अरेंज द वर्ड प्रताप इन हाउ मच डिफरेंट वेज? 180 ways. So this is the different some special type of arrangement where some objects are repeated. वहाँ पे कुछ objects क्या है? Repeated है, right? So this is 2 example. Representation प्रताप, ये कैलकुलेट करना इतना ईजी नहीं, सो इसको मैंने स्किप कर दिया और ये सिंपल एग्जाम्पल लिया, राइट? दिस इज द नेम ऑफ मी, राइट? सो उसके अरेंजमेंट कितने हुए? 180. ओके, सो दिस इज द अरेंजमेंट. ये ऐसे अरेंजमेंट है. कुछ सेल्फ में बुक्स रखना है. फिजिक्स के 3 बुक्स है, केमिस्ट्री के 2 बुक्स है, मैथ्स के 4 बुक्स है. सो वी हैव टू अरेंज इन दिस हाउ मच वेज? फिजिक्स नंबर ऑफ बुक्स 3, chemistry number of books 2, maths number of books what? 4. So total possible arrangement is 4 factorial, 3 factorial and 2 factorial. So this is the total possible arrangement of books in the rack, in the shelf where physics, chemistry and math. So total possible arrangement इतने हो गए. ओके, सो बहुत सारे और कुछ एग्जाम्पल से कुछ कंसेप्ट है और देखेंगे. ओके, so this is the meaning. Permutation means it's what? Arrangement. Okay, now we'll see the some special type of permutation. When permutation of n objects taken are at a time, when repetitions of objects are not allowed. Repetitions of objects are not allowed. A repetition of objects are not allowed. Permutation of n objects taken are at a time. When repetitions of objects are not allowed, then it is equal to n factorial divided by n minus r factorial. This is the first case. In second case, the number of permutations of n objects when taken are at a time when 2 specified objects are always together. ऐसे कुछ अरेंजमेंट करना है कि उसमें से 2 ऑब्जेक्ट्स ऑलवेज साथ में होना चाहिए. जैसे कुछ वर्ड का अरेंजमेंट है, कुछ लेटर का अरेंजमेंट है, उसमें से 2 कुछ भी लेटर्स साथ में ही होना चाहिए. इट मीन्स व्हाट? द परमुटेशन ऑफ n ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट अ टाइम व्हेन 2 specified objects are always together. 2 specified objects are always together, which is equal to 2 into n minus 1 factorial. इसमें से थर्ड केस है 2 specified objects are never together. अगर वो ऑब्जेक्ट नेवर टुगेदर है, सो दैट इज इक्वल टू n माइनस 2 इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल. ये कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ परमुटेशंस है. यहाँ पर रिपीटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर नॉट अलाउड.
So that is n factorial upon n minus r factorial, which is the standard form of the permutation npr. टू स्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट्स आर ऑलवेज टुगेदर. कौन से भी दो स्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट्स अगर साथ में होना चाहिए तो उसके लिए फॉर्मूला है 2 into n minus 1 factorial. It is a objects a permutation of n objects taken r at a time when two specified objects are always together. Two specified objects are never together. So this is three different types of special types of permutation. इसके बाद नंबर 4 है. When a particular object is always included. When a particular object is always included, r into n minus 1 p r minus 1 when specified, when a particular object is included. अगर ये उसमें ऐसे अरेंजमेंट करना है कि ये ऑब्जेक्ट उसमें कंपलसरी होना ही चाहिए, कुछ भी ऐसी कंडीशन है, वन ऑब्जेक्ट कंपलसरी वहाँ पर होना चाहिए. सो परमुटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट अ टाइम व्हेन अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज इंक्लूडेड, वो उसमें होना चाहिए. दैट टाइम आर इंटू एन माइनस 1 पी आर माइनस 1. दिस इज द फोर्थ स्पेशल केस ऑफ परमुटेशन. नंबर 5th, the number of permutation of n different object taken r at a time when particular object is never included. Particular object is never included. So that is n minus 1 pr. n minus 1 pr when particular object is not included. When particular object is included, this is the formula. When particular object is not included, this is the formula. So this is the one more special type of permutation. कैसे कुछ अगर हम जब वर्ड एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं ना, दैट टाइम हमें ऐसे कंडीशंस दिए थे. 2 girls are always together for a photograph. Always together दो, टू स्पेसिफाइड ऑलवेज टुगेदर. सो दैट टाइम हमें ये अप्लाई करना है. कितने गर्ल्स है, कितने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, 10 है. सो 2 into 10 minus 10 minus 1 9, 2 into 9 फैक्टर उसका आंसर है. सो हम डायरेक्टली आंसर फाइंड करेंगे ये शॉर्टकट से. सो दिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ परमुटेशन. 2 boys नेवर कम्स टुगेदर. उस अरेंजमेंट में, उस फोटोग्राफ में 2 बॉयज साथ में नहीं होना चाहिए. सो ये फॉर्मूला अप्लाई करना, n minus 2 into n minus 1 फैक्टोरियल. टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 10 है, 10 minus 2 8, 10 minus 1 9, 8 into 9 फैक्टोरियल, वो उसका आंसर बन जाएगा. ओके. सो ऐसे कुछ है. व्हेन अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज इंक्लूड, उसमें उस ऑब्जेक्ट को इंक्लूड करना है. जैसे में उस फोटोग्राफ में ये क्लास टीचर होना वहाँ पे ज़रूरी है, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. ओके. सो दिस इज नंबर 5th फॉर द परमुटेशन. So repetitions of objects are not allowed. When repetition of R object is allowed, a repetition of R object is allowed, so that time it is a n raised to R. This is the formula. A repetition of R objects taken is allowed. Means what? Permutation of n objects taken R at a time when R object, which repetition of R object is allowed. जैसे यहाँ पर repetition of objects are not allowed, अब repetition of R object is allowed. This is n raised to R, right? So यहाँ पर नंबर 7 और एक मैं लिखता हूँ यहाँ पर repetition का है. So P repeated, Q रिपीटेड, R रिपीटेड, ये 3 रिपीटेड है. टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर n, देन इट इज n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय P फैक्टोरियल, Q फैक्टोरियल एंड R फैक्टोरियल. सो रिपीटेशंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स, जैसे मैंने एग्जांपल लिया था रिप्रेजेंटेशन का, और उसके बाद मैंने एग्जांपल लिया था व्हाट, दैट इज प्रताप का. सो आप जितने भी लेटर रिपीटेड है, R रिपीटेड था 2 times और P रिपीटेड था 2 times. सो 2 फैक्टोरियल, ऊपर कितना है, प्रताप में 6 लेटर थे, वो 6 फैक्टोरियल. सो वही उसका फॉर्मूला है, राइट. सो दिस इज द स्पेशल टाइप ऑफ अरेंजमेंट. अगर और एक मैं यहाँ पर लिखता हूँ, वो है सर्कुलर परमुटेशन.
Circular permutation means what? We have to arrange n objects in circular arrangement. So that arrangement is what? N minus 1 factorial. So that is circular arrangement. Circular arrangement. So we have to arrange 7 peoples for a meeting in circular table, in a circular bench. So that time अगर 7 है तो उसका आंसर कितना आ जाएगा? 7 minus 1 factorial. So that will be what? 6 factorial. So this is what? Circular permutation of n objects taken r at a time, which is what? N minus 1 factorial. So this is a particular circular arrangement or circular permutation. So ये कुछ important concept है. अगर clockwise एंटी clockwise is not distinguish, clockwise और एंटी clockwise is not distinguish, means circular permutation में this is a clockwise and this is anti clockwise. ये एंटी clockwise है, ये clockwise है. So if clockwise and anti clockwise is not distinguished, so that time it is equal to n minus 1 factorial upon 2. N minus 1 factorial upon 2 when clockwise and anti-clockwise is not distinguished. Clockwise and anti-clockwise is not distinguished. Is not distinguished. So these are some special types of permutations. अगर कुछ उसमें ये एंटी क्लॉक में बिठाना है, ये क्लॉक में, ऐसा कुछ डिस्टिंग्विश नहीं है, so that time we have to apply this formula, that is n minus 1 factorial divided by 2. Okay, so this is all about what? Permutation. So permutation is nothing but what? It is an arrangement of n objects taken r at a time. Okay, now after this we have to start the combination. Now let's see the combination. Next concept, second part of the topic, that is combination. The meaning of combination is simple, that is a selection. Combination means what? Selection. Selection of objects. Selection of n objects taken r at a time, which is denoted by NCR. So that time that is a C, that C is what? Combination, that P for combination, P for permutation, C for combination. So it is a n factorial divided by r factorial into n minus r factorial. So selection of objects. So selection of n objects taken r at a time, that is NCR. NCR को NCR ऐसे भी लिखते हैं, NCR और NCR ये भी है, ये सेम है, ये तीनों भी सेम. ओके, सो अगर ये 5 ऑब्जेक्ट्स है, ए बी सी डी ई, ये 5 ऑब्जेक्ट्स है, वी हैव टू सेलेक्ट 2 ऑब्जेक्ट्स लाइक ए बी, ए सी, ए डी और ए, बी सी, बी डी, बी, सी डी, सी, लास्ट इज व्हाट? डी. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स 5. हमें 2 ही ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना था, सिलेक्शन इज व्हाट? 2. सो इट इज अ 5C2. सो आंसर कितना आ गया? 10 आ गया, 10. सो आंसर इज 10. So the most important thing in that permutation and combination, in permutation objects or the order of objects is immaterial, means यहाँ पर combination में A B और B A सेम है. So permutation में क्या है? Objects of order of objects are means उसकी important है, यहाँ पर कोई important नहीं. A B B A सेम है, A B and B are same, but in permutation ए बी और बी ए डिफरेंट है, बिकॉज अरेंजमेंट में ए लेफ्ट साइड में है, बी राइट साइड में है, यहाँ पर बी लेफ्ट साइड में है, ए राइट साइड में. सो इन परमुटेशन ऑर्डर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज इम्पॉर्टेंट, बट इन कॉम्बिनेशन ऑर्डर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज नॉट इम्पॉर्टेंट. सो हियर सो ए बी और बी ए, यहाँ पर मैंने बी ए कहीं पर लिया क्या? नहीं लिया. सो ए बी बी ए सेम है, ए डी है, वहाँ पर डी ए है क्या? नहीं है.
यहाँ पर सी ई है, ये सी ई सी है कि यहाँ पर कुछ नहीं है, सी ई सी सेम है बिकॉज इट इज़ अ सिलेक्शन। सिलेक्शन में ऑर्डर इमटेरियल होती है, बट कॉम्बिनेशन दैट इज फॉर परमुटेशन अरेंजमेंट में ऑर्डर ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर important, but in combination order of objects is immaterial, not important. Okay, so 5C2 का आंसर कितना आ गया 10, प्रैक्टिकली 10 आ गया। सो हम इसको सॉल्व करेंगे 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 5 माइनस 2 इज व्हाट 3 फैक्टोरियल। तो इसको सॉल्व करो 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, ये 2 फैक्टोरियल 1 इंटू 2, ये 3 फैक्टोरियल आज इट इज़, ये कैंसल, 5 2 आर 10, आंसर कितना आ गया 10, बाय प्रैक्टिकली 10 आ गया। फॉर्मूले से भी सॉल्व किया, ये फॉर्मूले से सॉल्व किया मैंने, वो भी कितना आ गया 10 आ गया। सो इट्स वेरी सिंपल। सो अगेन आई रिपीट दैट स्टेटमेंट, इन कॉम्बिनेशन selection order of objects is not important, but in arrangement, but in permutation order of objects is important, but here is immaterial, not important. Okay, so this is the combination is a what selection of objects। यहाँ पर कुछ properties है combination की वो मैं यहाँ पर बताता हूँ आपको। There are some properties of combination which are very very important. Look at this properties। फर्स्ट प्रॉपर्टी, अगर दोनों भी सेम है एन सी एन इट इज इक्वल टू 1, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस एन फैक्टोरियल इंटू एन फैक्टोरियल, सो इट इज व्हाट 1 बिकॉज 0 फैक्टोरियल कितना होता है 1 होता है। एन सी 1 इज इक्वल टू एन बिकॉज 0 फैक्टोरियल कितना है 1 है। एन सी 1 इज इक्वल टू एन, एन सी 0 इज इक्वल टू 1। सो एन सी आर जो है, सो दिस आर इज लेस देन और इक्वल टू एन, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये जो आर है इससे छोटा होना चाहिए, बड़ा नहीं, इक्वल चलेगा, ग्रेटर देन 0 भी चलेगा बट निगेटिव तो नहीं चलता। सो दिस इज condition for combination, this r is must be less than or equal to n और greater than equal to 0। ये कुछ प्रॉपर्टी, और एक प्रॉपर्टी है एन सी आर इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर, ये प्रॉपर्टी। जैसे अगर 20C18 है तो इसको हम 20C2 भी लिख सकते हैं, 20 माइनस 18 इज व्हाट 2, सो एन सी आर इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर। और कुछ प्रॉपर्टी यहाँ पर देखो, एन सी एक्स इज इक्वल टू एन सी वाई, देन आइदर एक्स इज इक्वल टू वाई और एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एन, ये भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इफ एन सी एक्स इज इक्वल टू एन सी वाई देन एक्स इज इक्वल टू आइदर एक्स इज इक्वल टू वाई और एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एन। ओके, और कुछ प्रॉपर्टी है यहाँ पर, एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस 1 विच इज इक्वल टू एन प्लस 1 सी आर, एन प्लस 1 सी आर, ये भी सेकंड प्रॉपर्टी है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है लाइक दिस। सो दिस इज ऑल अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ व्हाट पर कॉम्बिनेशन, ये सब प्रॉपर्टीज है। ओके, so here these are the properties। so this is the study of what combination is nothing but what selection of objects। selection कई बड़े playing cards में होते हैं, selection पिक अप द बॉल, सेलेक्ट करना है, बॉल्स पिक करना है, रेड बॉल्स, ब्लू बॉल्स, ब्लैक बॉल्स फ्रॉम द बैग। सो ये टोटल अबाउट व्हाट कॉम्बिनेशन। सो वहाँ पर क्या है एन सी आर है, राइट, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। इसको हम कुछ शॉर्टकट से भी सॉल्व करेंगे। अगर 10C3 करना है, इसको 10 इंटू 9 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 2 इंटू 3 कर सकते हैं। इसको 3 बार डिक्रीज करना है, वो 3 बार लिखना है। इस फॉर्मूले की अप्लाई करने की भी ज़रूरत नहीं। अगर हमें करना है 9C4 तो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। अगर इसको हमने इस फॉर्मूले से सॉल्व किया तो ऐसे बनेगा ये 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय
4 फैक्टोरियल इंटू 9 माइनस 4 इज व्हाट 5 फैक्टोरियल। सो इतना सब लिखने से बेस्ट वे क्या है, ऐसा लिखो 9 को 4 बार डिक्रीज करो, 9 8 7 6, और ये 4 है तो 1 2 3 4। देखो और एक मैं लिखता हूँ 12C3 है तो हम कर लेंगे 12 इंटू 11 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 2 इंटू 3। इस फॉर्मूले से सॉल्व करो, ये सॉल्व करो, दोनों सेम आएगा, लेकिन ये बहुत ईजी है। 3 बार 12 को डिक्रीज करना है, 1 2 3 लिखना है। अगर यहाँ पर 4 है तो 1 2 3 4, 12 11 10 and 9. So okay, so this is what combination. Combination means selection of objects and permutation means arrangement of objects, right? In permutation order of objects is important, but in combination order of objects is immaterial or not important. Okay, सो जब हम एक्चुअल एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे परमुटेशन कॉम्बिनेशन का, तब आपको ज़्यादा डिटेल में समझ में आएगा कि वर्ड एग्जाम्पल कैसे होते हैं, फैक्टोरियल के एग्जाम्पल कैसे होते हैं। ओके, सो विल सी द एक्चुअल एग्जाम्पल्स इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स ऑन द परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। विल टेक लॉट्स ऑफ MCQs। एक MCQ तो पक्का आपका करेक्ट आने वाला है, एक ही मैक्सिमम एक क्वेश्चन आएगा, तो वो जो भी आएगा आपका पक्का आएगा और विद इन टाइम में सॉल्व हो जाएगा। ओके, सो दिस इज द सफिशिएंट स्टडी फॉर द टॉपिक परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। विल स्टॉप हियर. On next day we'll see the actual MCQs on the permutation and combination. Okay, so stay tuned on this YouTube channel Math Mentor. Thank you very much.